थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम क्लास 11th वाला, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला है वो हो जाता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। और सेक्शन फार्मूला हमारा हो जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 m2 m3 प्लस m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 पूरा ये 3 so and similar for y similar for z। यही है इंट्रोडक्शन में। तो 11th वाले में लेट्स मूव टू द क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट says find the distance between the points 2, 3, 5 and 4, 3, 1. x1 is 2, y1 is 3, z1 is 5, x2 is 4, y2 is 3, z2 is 1. Let a be. So AB distance is mod of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square modulus, which is 4 minus 2 whole square plus 3 minus 3 whole square plus 1 minus 5 whole square. This is 2 square plus 0 square plus 4 square. This is 4 plus 0 plus 16. This is root 20 modulus. Root 20 is 2 root 5 units. We are trying question number 2. Question number 2 says show that the points minus 2, 3, 5, 1, 2, 3 and 7, 6, 7, 0, minus 1 are कोलिनियर। इसको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 1, फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स we can define that the collinear points have a collinear line, which means a1 by a2 should be equal b1 by b2 should be equal c1 by c2. Similarly, a2 by a3 equals b2 by b3 equals c2 by c3, or a3 by a1 equals b3 by b1 equals c3 by c1. Let's substitute the values here. Minus 2 by 1 is equals to 3 by 2 is equals to 5 by 3. This is not right. Let's try this. 1 by 7 equals 2 by 0 is equals 3 by minus. This is not also equal. Then let's try this. This means a3 by a1, 7 by minus 2 is equals to 0 by 3 is equals to minus 1 by 5. This is not equal. So method 1 is not applicable. Let's try with the method number 2. Method 2 says that the points are collinear by the triangle inequality. Triangle inequality is a condition जहाँ पे वो कहते हैं AB plus BC greater than equals to AC, AB plus AC greater than equals to BC, BC
प्लस AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू AB। ये 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 यानी 9 कंडीशंस में से अगर एक भी ट्रू है तो वो कोलिनियर हो जाता है, और अगर एक भी ट्रू नहीं है यानी फिर वो ट्रायंगल होता है। लेट्स चेक दिस। सबसे पहले हम यहाँ से इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। तो क्या हम डिस्टेंस बिटवीन AB, BC एंड AC नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द एरिया फर्स्ट बिटवीन AB का हम एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओ दिख ही नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। विच मीन्स 1 प्लस 2 3 9 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर 4 which is root 14. Then BC can also be calculated with the same formula, 7 minus 1 whole square plus 0 minus 2 whole square plus minus 1 minus 3 whole square, which is 7 minus 1 6 6 is 36 plus 4 plus minus 4 is 16, which is 56. This can also be written as 277. This is only root 14. But 56 can be written as 2 2 8 2 1 14 2 7 2 यानी 2 root 14 in terms of 14 लिख रहे हैं ना। Then we can calculate AC, सेम फार्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा से रहेगा। 7 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। दिस विल बी 9 9 ज़ा 81 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 6 ज़ा 36। 90 प्लस 36 इक्वल 6 126। इसको हम करेंगे तो ये आएगा 3 root 14। कैन वी डायरेक्टली सी दैट AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली इक्वल्स वाली कंडीशन ट्रू हो रही है फर्स्ट में। 9th में एक कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये पॉइंट कोलिनियर है। Hence points are collinear. Next we are taking up the question number 3, first part. This question says that the coordinates of the 3 points are given. Let's say the coordinates of A, B and C are given, and they are saying prove it as isosceles triangle. Isosceles triangle has the property जहाँ पर 2 साइड्स जो है इक्वल होती है एक दूसरे के, यानी यहाँ पे 3 कंडीशंस होती है कि AB बराबर हो BC के, AC बराबर हो BC के, या फिर AB बराबर हो AC के। हमें किसी एक कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लेते हैं। 0, 7, -10, 1, 6, -6, 4, 9, -6। यानी अब हम ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो बिना कुछ सोचे समझे ए बी आ जाएगा हमारा 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर प्लस -6 - 10 का स्क्वायर, विच इज़ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, विच इज़ 1 + 1 + 256 इज इक्वल टू
258। देन हमें BC निकाल सकते हैं बाई यूजिंग 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 16 आएगा, ये 18 हो जाएगा। ये भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का 9 प्लस 1 प्लस 0, दिस इज √10। सिमिलरली AC भी आ जाएगा हमारा सेम फॉर्मूले से। लेट्स फाइंड आउट द AC। इट इज़ 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 प्लस 6 का स्क्वायर। दिस इज 4 4 द 16 प्लस 2 4 प्लस सिमिलर 4 प्लस 4 8 प्लस 16 इज 24। नो, कुछ मिस्टेक है कहीं पर। लेट मी एनालाइज। गाइस, मेरे को मिस्टेक मिल चुकी है। यहाँ पे 6 माइनस 9 3 होता है, ये हो जाएगा √18। यानी हमें पता चल गया है कि AB और BC बराबर है, यानी AB और BC बराबर है, यानी दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। दिस ट्राइंगल इज isosceles. Now we are taking up the difficult part of the chapter question, that is question number 4. Just look at the question number 4. Find the equation of the set of the points which are equidistant from the point this and this। यानी हमें पॉइंट्स के सेट निकालने हैं जो कि इस पॉइंट से 1, 2, 3 और इस वाले पॉइंट से 3, 2, -1 इक्वेशन में सेट हो। यानी कोई भी एक पॉइंट, लेट्स से P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो H, K, L, मान लो लेट्स से HKR मान लो HKR होता है, आई फॉरगॉट, HKR है। तो वो कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंस हो, यानी AP जो है BP के बराबर होना चाहिए। हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यही आता है। अभी हमने इस चैप्टर में सिर्फ यही यूज़ करना है। सेक्शन फार्मूला वी विल सी इन द 12th। जल्दी से लगाते हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मेरे को लंबी वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन अब ये वीडियो लंबी होती जा रही है। मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि बार बार कैमरा एडजस्ट ना करना पड़े। ऐसे पकड़ के रखेंगे कैमरे को ताकि मेरे को भी दिखता रहे, वरना मैं मोबाइल से देखता हूँ ना तो पैरालैक्स होता है। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला क्विकली। 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर प्लस 3 माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ 3 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर प्लस -1 माइनस r का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। 1 माइनस h के स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस, इसे माइनस नहीं लिखना चाहिए, -2h, दिस इज प्लस k स्क्वायर -4k प्लस 9 प्लस r स्क्वायर माइनस 6r इज इक्वल्स टू 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 प्लस r स्क्वायर इज प्लस इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी -2r। ठीक है, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, प्लस k स्क्वायर से प्लस k स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा है, 1 माइनस 2h प्लस 4 माइनस 4k प्लस 9 माइनस 6r इज इक्वल टू 9 माइनस 6h प्लस 4 माइनस 4k प्लस 1 माइनस 2r। 1 से 1 कैंसिल, -4k से -4k कैंसिल, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल।
क्या बचा -2h, ये इधर आ गया +6h, +9 से +9 भी कैंसिल, और ये बचा -2r, ये आ गया +6r, ये बचा 4h इज इक्वल्स टू 4r, 4 से 4 कैंसिल, h इक्वल्स टू r, यानी h की भी वैल्यू 1, r की भी वैल्यू 1, तो हमें जो p कोऑर्डिनेट मिला है वो हमें k की टर्म्स में नहीं मिला, तो इट्स 1,0,1। यही क्वेश्चन था बस। विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ने दो मेरे को, मैं ही नहीं पढ़ूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट P, the sum of the whose distance from A, which is 4,0,0, B, which is -4,0,0, is equals to 10। यानी कोई सा भी P पॉइंट ले लेते हैं H, K, R, तो ये इक्वेशन कह रही है कि A P प्लस B P इज इक्वल्स टू 10। सम फ्रॉम द A एंड B इज इक्वल्स टू यही। तो ये तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ही लेते हैं। इसमें क्या है, 4 - h का स्क्वायर प्लस 0 - k का स्क्वायर प्लस 0 - r का स्क्वायर प्लस -4 - h का स्क्वायर प्लस 0 - k का स्क्वायर प्लस 0 - r का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं पहले आगे खुल के। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है, इसलिए मैं ऐसे ही रखता हूँ कैमरे को। अब मेरा सराउंडिंग्स दिख रही है तो दिखने दो, क्योंकि अगर मैं कैमरा ऐसे ऊपर नीचे करता रहूँगा तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है क्वेश्चन। ये हो जाएगा 16 + h² प्लस -8h प्लस k² प्लस r² प्लस सिमिलरली 16 + h² प्लस 8h प्लस k² प्लस r² इज इक्वल्स टू 10। अब पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, विच विल बी 16 + h² - 8h प्लस k² प्लस r² का स्क्वायर प्लस √16 + h² प्लस 8h प्लस k² प्लस r² का स्क्वायर प्लस 2 × √16 + h² - 8h प्लस k² प्लस r² इंटू 16 + h² प्लस 8h प्लस k² प्लस r² इज इक्वल्स टू 100। यानी इससे तो ये खुल ही जाएगा। ये होगा 16 + h² - 8h प्लस k² प्लस r² प्लस 16 + h² प्लस 8h प्लस k² प्लस r² प्लस 2 × this will be a whole under root 16 + h² - 8h प्लस k² प्लस r² प्लस 16 + h² प्लस 8h प्लस k² प्लस r² इज इक्वल्स टू 100। यानी कि -8 से +8h कैंसिल, सिमिलरली इन द अंडर रूट ये बचेगा 32 + 2h² प्लस 2k² प्लस 2r² प्लस 2 √ 32 + 2h² प्लस 2k² प्लस 2r² इज इक्वल्स टू 100। अब ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन, यानी ये और ये कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को हमें अलग से बड़ी इक्वेशन बना के डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर इस टर्म को इधर ले लिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 32 + 2h² प्लस 2k² प्लस 2r² इज इक्वल्स टू 100 - 2 √32 प्लस 2h² प्लस 2k² प्लस 2r²। अब इसको हम
इधर लेकर जाएंगे तो हल्का हल्का सोल्व हो जाएगा। 2h² + 2k² + 2r² इज इक्वल्स टू 68 - 2 32 + 2h² + 2k² + 2r²। अब इस पूरे टर्म को होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इस पूरे टर्म को जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9h² + 25k² - 25r² - 225 इज इक्वल्स टू 0। ये इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इस चैप्टर की मिसलिनियस कर लेंगे। मिसलिनियस में बस 4 ही क्वेश्चन हैं, तो बस 10 मिनट की वीडियो बनेगी। अभी बस मैं बना ही रहा हूँ, ये अपलोड होती रहेगी, वो मैं बना लेता हूँ।